Sir. I would. You can switch on your video if you want. Okay, only one person. Two. Very good. What about the rest? They don't want. चलो ठीक है. आप लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो वो पोर्शन जितना मैंने करा दिया है सब क्लियर है. ऑलमोस्ट आई थिंक दैट आई हैव कंप्लीटेड. है ना. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट डन. Yes, सब sir. कम. Yes, sir. ओके वेरी गुड. तो डू एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दैट. आप लोग डीडीपी सॉल्व कर रहे हैं. You Yes, all are sir. solving. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. 4 students says yes. Okay. Sir, हाँ बताइए लक्षण. I am having my SST paper on 8. Okay. So लक्षण, what do you want from me? Sir, I wanted you to teach me the French Revolution chapter. I should start French Revolution. Yes, sir. Sir, अगर उसकी कोई छोटी सी समरी हो तो बता दीजिए. No, actually, we cannot complete it in a summary-wise manner. French Revolution. Okay, we cannot. I can mean central idea, though I can give central idea, but it will take again half an hour or 1 hour maximum. Okay. So if you have any doubt in any section of French Revolution, you can ask me. Because now it is pre-scheduled. The lesson has been given out to everyone. So we will start the story of village Palanpur. Okay. So आपने बताया भी नहीं मुझे कि that you want to start or do French Revolution. So that's what. Sir, डेट शीट आज ही आई है. Okay. So you can ask any doubt. Okay. If you have any doubt, you can ask me. Okay. We can have a separate doubt class. You can ask academic department whether when they are trying to when they have time to reschedule or have a doubt class. They can help you. Okay. So any other doubt apart from this anybody has can ask. Anybody has any kind of doubt can ask in physical features of India. Sir, Yes. सर आपने सर नोट्स में लिखा है था सर गोंडवाना लैंड इज द ओल्डेस्ट मास. सर हम मास की जगह लैंड मास भी लिख सकते हैं ना. मैंने मास लिख दिया था. यस सर सिर्फ मास लिखा था सर लैंड मास नहीं लिखा. Okay, it will be land mass, not mass. Correct कर दो उसे. Oldest land mass, not mass. Mass here refers to no. सर सर एक और डाउट था. सर हम अन्ना मुदाय को सर अन्ना मलाई भी बोल सकते हैं ना. अन्नामलाई. यस सर. शायद. अनाईमुड़ी वैसे कहो आप. सर हमारे स्कूल टीचर ने बताया था. हाँ अनाईमुड़ी वैसे रखो. तो वैसे एटलीस्ट सेम. ठीक है. ओके सर. और किसी का डाउट. आप अन्नामलाई सही कह रहे हो. अन्नामलाई. सर एक और डाउट था. सर अरावली रेंज का सर हाईएस्ट पीक सर डोडा बेटा नहीं है ना. नहीं. वेस्टर्न घाट्स का सेकंड हाईएस्ट पीक. ओके सर. और कोई का डाउट. तो शुड आई आस्क यू सम क्वेश्चंस. क्या मैं देखूं आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. कुश कौशिक. कुश कौशिक मेरी आवाज आ रही है आपको. कुश कुश कौशिक can you hear me? Yes, sir.
Okay, Kosh, can you give some differences between Western Ghats and Eastern Ghats? Yes, sir. बताइए. क्या सर दोबारा Kosh, सर एक बार Kaushik, रिपीट कर दीजिए. difference between Western Ghats and Eastern Ghats. Okay. निधि कुमारी. कुछ कौशिक आपका जवाब नहीं मिला. ठीक है. निधि कुमारी आप आंसर करिए. कोश अपने माइक को म्यूट करो. निधि कुमारी, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंस बताइए. वैभव गुप्ता, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में डिफरेंस बताइए. Yes, sir. The Western Ghats continuous and can only be crossed by passes, वेरी गुड. whereas the Eastern Ghats are discontinuous and irregular, deserted by rivers which drain into the Bay of Bengal. वेरी गुड. और Western Ghats, most probably in Western Ghats, orographic rain occurs, whereas in Eastern Ghats, monsoon winds are nearly parallel and there is no orographic rain. यस. Any other? Highest peak of Western Ghats, Anaimuri, 2,695 meters. Highest peak of Eastern Ghats, Mahendragiri, 1,501 meters. Very good. Very good, Vaibhav. Can I hear a clap for him? Can I hear a clap? Only three students are there. Krish Verma. Okay, good. Thank So you, Krish sir. Verma. Okay. Krish Verma, आप आंसर करिए. Answer me a question. Plateaus. What do you know about plateaus? Krish. कैमरा ऑन करिए. Krish Verma. Switch on your camera. Krish. Yes. बताइए. Plateaus के बारे में. What do you know about plateaus? The plateaus are present in the southern part of the India. They are formed by the old crystalline black soil. There are three types of plateaus in India. Chota Nagpur Plateau, Central Highlands and the Deccan Plateau. The plateau is very rich in the mineral resources. And it is used in the plantation of tea gardens. Very good. और plantation of tea garden. Sir, coffee. अच्छा. लिखवाया मैंने ऐसा. चलिए बोलिए. कोई बात नहीं, आगे बोलिए. आगे बोलिए. Central Highland. What do you know about Central Highland? The Central Highlands are present at the topmost area of the plateau of India. They are surrounded by the northern plains and the Thar deserts. In this area, क्रिश, ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है ना? yes, मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से याद करके आएंगे, है ना? yes, sir. ओके, गुड. हेलो, लक्षेंद्र. Yes, sir. Switch on your camera. Yes, sir. Yes, Lakshen. Tell me about Northern Plains. Sir, northern plains are northern plains are around 7 lakh kilometer.
northern ranges are spread around 7 lakh kilometer. It is densely populated. Northern plains, the wetness of northern plains is 240 kilometer to 300 kilometer, and the uh, northern plains is around 2,400 kilometer, and it is northern plains contain alluvial soil, and uh, and it is and its soil is fertile for cropping. Okay. So in northern plains we have studied, okay, Bangar region. Okay, there are 4 different regions in which I taught you Bangar region. Bangar region के बारे में what do you know? Your voice is not clear. Sir, अब आ रही है? हाँ बोलो. थोड़ा- In Bangla region, there are in the Bangla region, conquers the rocks are found. The small hard rocks are found. That's all. लक्षेंद्र आपने भी ठीक से पढ़ाई नहीं की है. Yes, sir. नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? Okay, sir. Yes, sir. ओके. याशिका अरोरा. Yashika, can you hear me, Yashika? Very good. She cannot hear me. She is not hearing me. Priyanka Baghel. Am I audible to you, Priyanka? Okay, very good. Chirag Sinha. Am I audible? चिराग, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है चिराग. Be louder. तो प्रियंका. सौरन वारिश. Can you hear me? चलिए, let me tell you one more thing, that it is necessary in my class, okay, to do revision. It is very necessary in my class. Those who are able to do revision regularly will be allowed to take class. Let me tell you very clearly, those who are not serious will not be allowed in my class. Okay? If you think that you will just take class and you will leave whatever I have taught you, ठीक है, सो आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ होगा. आपके अगर कोई सीनियर हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, अगर कोई इसको जानते हो. ऐसा नहीं है कुछ हार्ड एंड फास्ट की पढ़ना है, पूरा याद करना है, थोड़ा सा पढ़ के आना है. जितना मैं आज पढ़ा दूँ बस उस नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आओ. इनिशिएटिव लो कि नहीं, यस सर आई कैन आल्सो स्पीक, आई हैव आल्सो काइंड ऑफ करेज दैट आई कैन स्पीक. थोड़ा सा ही बताओ. अब ऐसा थोड़ी है कि आई थिंक वैभव गुप्ता ने शायद आंसर दिया था. वैभव गुप्ता ने पूरा सही नहीं बोला था, बट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज दैट काइंड ऑफ करेज टू स्पीक. You don't have courage to speak. You are not speaking. You are not listening. But sir is asking. Sir is calling me. Should I speak or not? क्लासरूम में होते तो ऐसा कर पाते हैं आप? नहीं कर पाते. कम्युनिकेशन होना चाहिए ना. Yes sir. आज I will not be able to answer because due to some certain issues. ठीक है, मैं नहीं कर पाया. In next class I promise that I will do that. ठीक है, acceptable है. बट आप कुछ बोल ही नहीं रहे. आपको लगता है कि सर बुलाएंगे, हम ऐसे चुप बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सर आगे बढ़ जाएंगे. तो मैं नाम बुला रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि नाम याद नहीं रहेगा. आज मैं फिर से आप लोगों को चांस देता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से तैयार करिए, पढ़ के आइए. जितना पढ़ाऊँ सब उतना ही करिए. अगर आप कहेंगे सर पिछले क्लास में मुझे जो भी आपने पढ़ाया मुझे मालूम है, that is okay for me. I will not ask beyond that. But it is necessary that you do revision regularly. ठीक है, रेगुलरली अगर रिवीजन अगर आप कर रहे हो
तभी आप क्लास में होते हैं। और आपके पेरेंट्स का जब पीटीएम होगा तो उसमें उस तरीके का फीडबैक भी जाएगा कि बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। इफ यू विल नॉट डू गुड, ऑब्वियसली आई विल नॉट से यस गुड, है ना। तो उस फ्रंट में भी याद रखिएगा इस बातों को। मैं बुलाऊं तो एटलीस्ट इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से यस, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. प्रियंका, चिराग, सौरन, कैन यू हियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा सभी लोग, पढ़ के आइए, थोड़ा ही पढ़ के आइए। चलिए, we will start today's topic, है ना। Today's topic will be about the story of village Palanpur. I think the physical features almost done ना, कि कोई पार्ट रह रहा है? कोई ऐसा पार्ट है जो कि मैंने अभी नहीं कराया है? Did I told you about corals? Corals के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको? Can you repeat? Corals, did I taught you corals in previous class? Corals मैंने पढ़ाया था? No, sir. No, sir. Okay. So we will today start with we will do coral first of all. Okay. The next we will move to the story of village Palanpur. So corals can be asked in your NTSC as well as in GSTSC. That's why we are doing over there here. And it depends on your teachers also, that if that teacher or she wants to ask corals, he or she can ask. Okay. Depends on her mood. अगर उन्होंने पढ़ाया है तो definitely she will ask or he will. So corals, what is corals? Write it down. Short-lived microscopic organism which live in colonies. इससे कोरल्स आपने पढ़ाया है, हाँ, इसे पढ़ाया है आपने। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। Short-lived microscopic organism which live in colonies. Corals. Sir, please try. Short-lived microscopic organism which live in colonies. कॉलोनीज में बना के रहते हैं वो, ठीक है। फ्लरिश किसमें करते हैं, बढ़ते हैं पनपते किसमें है, शैलो, मड फ्री, ठीक है, मड फ्री एंड वार्म वाटर। वार्म वाटर क्या सिक्रेट करते हैं, शैलो के बाद क्या है? मड फ्री। क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट दे सिक्रेट, दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कोरल सेक्रेशन, कोरल के सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन, उनके मरने के बाद उनके स्केलेटन से हमें कोरल डिपॉजिट मिलता है। क्या मिलता है, कोरल डिपॉजिट। तो उसे किस फॉर्म में देखते हैं हम, इन फॉर्म ऑफ रीफ्स। रीफ्स क्या होते हैं, डिपोजिशन ऑफ कोरल्स। तो 3 काइंड ऑफ रीफ यू कैन सी। एक होगा आपका बैरियर रीफ, फर्स्ट वन विल बी बैरियर रीफ, सेकंड वन विल बी फ्रिंजिंग एंड थर्ड वन विल बी अटॉल, ठीक है। बैरियर रीफ आप देख सकते हैं कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना है? Yes, sir. हाँ, बैरियर का स्पेलिंग है थोड़ा सा Sir, करेक्ट। reefs का मतलब क्या है? रीफ मतलब कोरल के डिपोजिशन को हम रीफ कहते हैं।
ग्रेट बैरियर अटॉल अटॉल ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, आप सब जानते हैं। अच्छा, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? सर लास्ट वाला रीड कौन? अटॉल, ATOLL, बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ये लिखिए इंडिया। सही आपने लास्ट क्लास में से बताया था सर, DPP में भी है। अच्छा है, चलो वेरी गुड। यस क्या नाम है सर, आपका? सही क्वेश्चन है सर, ज्योतिष्ना। वेरी गुड सर्कुलर सर आपने कोरल का सवाल पूछा था आपने कल। हॉर्स शेप, अच्छा ये याद रखिएगा। सर ओनली ओनली एक्टिव इनके बाद क्या है? ओनली एक्टिव इन मतलब कहाँ का है? सर बेरियर आइलैंड के नीचे। बैरियर रीफ, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। ओके, तो यही है छोटा सा, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है पूरा से। ओके डन। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो ना, साइंस तो पढ़ते ही होंगे यस आप सर। लोग। ओके, तो शैल आई रब दिस नाउ? नो सर। राइट इट डाउन। Now the next thing, okay? I'm rubbing it out, okay? किसने कहा था नो? He or she should say yes ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो now we will start a new topic today. Name of that topic chapter is the story of village Palanpur. I think most of you have completed this chapter in your school, है ना? ये कौन Yes. से तक है? ओके, क्या आपने से This पहले? is also हाँ, सर मेरे पेपर के सिलेबस में भी है। किसके सिलेबस में है? सर मेरा पेपर है ना 8 तारीख को, सर उसके सिलेबस में भी है। सर एग्जाम के सिलेबस में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कोई जानता है स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर के बारे में? यस सर। अच्छा, एक शॉर्ट में बताइए कि ओवरऑल पालनपुर में हम क्या पढ़ते हैं? सर हम पालमपुर की फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। कोई और बच्चा? एक शॉर्ट में कि हमें क्या मेन पढ़ना था और उसको जो है पढ़ने के लिए हमें पालनपुर का एग्जाम्पल लेना पड़ा, क्या पढ़ना है मेन? हमें मेन Try don't read this. हमें प्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन। हाँ, हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे और वो प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ विलेज पालनपुर पढ़ेंगे। इज इट ओके? यस सर। हाँ, तो अब देखते हैं कैसे कैसे हम लोग ये प्रोडक्शन पढ़ते हैं। we will start with a village, a hypothetical village. I think most of you know the meaning of hypothetical. यस यस सर। ठीक है, एक hypothetical village है पालनपुर। hypothetical village पालनपुर है। इस hypothetical village में हम देखेंगे प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। हाइपोथेटिकल मींस ये इस तरह के विलेज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर पालनपुर जैसी विलेज एग्जिस्ट करती भी है तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल फाइंड इन द स्टेट ऑफ, बताइए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अगर है भी ऐसा कुछ सर वेस्टर्न में होगा सर, हिल स्टेशन जैसा। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में यू कैन फाइंड विलेज लाइक पालनपुर।
ठीक है, इस तरह यहाँ पे जो विलेजेस है कहीं ना कहीं पालमपुर जैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे सर ये इकोनॉमिक्स का जब इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। अब यहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है? Just in village Palampur, the main activity is Farming. farming. Very good. The main activity is farming. चलो फार्मिंग कराते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा अदर में अगर आप देखो तो यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। ओके, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है जो कि यहाँ पे होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो अब हम कोई भी काम प्रोडक्शन करने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बिग विलेज है जिसका नाम है रायगंज। क्या है? रायगंज, जो कि पालमपुर से कितना दूर है? 3 किलोमीटर। कितना दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर। ये रायगंज, ये एमपीएस से पूछा गया था, ये बिग विलेज है। ठीक है, अब ये जो 3 किलोमीटर है इसमें ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर मतलब हर मौसम में चलने वाला रोड, कच्ची सड़कें नहीं है, ऑल वेदर रोड है। ठीक है, और इससे फर्दर आगे अगर आप देखो, फर्दर नियरेस्ट कौन सा टाउन है बताओ? सर शाहपुर। शाहपुर। ये क्या है? स्मॉल टाउन है। शाहपुर इज अ स्मॉल टाउन, याद रखिएगा। शाहपुर क्या है? एक स्मॉल टाउन। थोड़ा इंफॉर्मेशन है पालमपुर के बारे में, ताकि ये इस इंफॉर्मेशन को आप जब ग्रैब कर लोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंटेंट रिटन इन दिस चैप्टर। Okay, you will find that they always correlate with different data, ठीक है, और different location of village पालमपुर। तो आप कभी शाहपुर का भी नाम आएगा बीच में, तो कभी रायगंज का नाम आएगा। So if you know these things, if these things are clear, then you can relate it over there. Okay, that's how Yes, things sir. are happening. अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। आई थिंक all of you have written this, है ना? Yes, sir. यस सर। तो अब यहाँ पे देखोगे ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो अवेलेबल। ट्रांसपोर्टेशन में मॉडर्न टाइप में भी हैं और ओल्ड वन भी हैं। ठीक है, जैसे बुलक कार्ट्स ले लो आप, टोंगास ले लो। ये सब देखा है आपने? टोंगास, बुलक कार्ट। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मोटर व्हीकल में अगर आप देखो, इन मोटर व्हीकल यू कैन फाइंड मोटरसाइकिल्स। ठीक है, जीप, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, ये भी अवेलेबल है। ओके, अब हाउ मेनी फैमिलीज आर क्या देयर? लिखा है? बोगोइस, POGEYS, बोगोइस है। अब यहाँ पे अगर फैमिलीज देखें ओवरऑल विलेज पालकपुर में, तो हाउ मेनी फैमिलीज आर रिसाइडिंग ओवर हियर? 450। कितने हैं? 450. 450 फैमिली। ठीक है, अबाउट 450 फैमिली, यू कैन राइट अबाउट ओवर हियर, लगभग। ओके, और उसमें से वो जो है डिफरेंट कास्ट के हैं। डिफरेंट कास्ट, आई थिंक कास्ट वर्ड आप सभी को क्लियर है? यस है ना? सर। इसमें से 80, ये डेटा सब सेपरेटली लिखते चलिए। 80 क्या है? अपर कास्ट फैमिली। 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लैंड होल्ड they hold the village। Okay, फिर से बाद SCs हैं। How many SCs are there? 1/3 of the population। कितना होगा बताओ? 1/3 of the population मैंने 150. अच्छा, क्या 150 किसने कहा?
Who said 150? Sir, me Vapor. Okay. और किसी ने कहा 150? Again, who said this 150 apart from Vaibhav? अरे 1/3 of the population means what? How many people are SCs? 3 into 15 is equals to 45. So 3 into 150 is equals to 450. That's why I said 150. और किसी का कोई आंसर है? Yes, sir. 150. Yes, 150. क्या नाम है? Sir, Zaid. Zaid. Okay, और चलिए पॉपुलेशन समझते हैं ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 150 फैमिली है। सभी लोग म्यूट करिए माइक को। There are 450 families. How many families? 450 families. तो एक फैमिली में how many member will be there? Suppose we take two. Two members are there in a family. हालांकि उससे ज्यादा ही होंगे। But take an example 2. तो अब 450 फैमिली हैं। तो कितने लोग हो गए टोटल? Into 2 कर दो तो 900 people हो गए। Yes, sir. तो 900 people is the population. Yes, sir. है ना? 900 लोग पॉपुलेशन में काउंट होंगे ना? तो यहाँ पे लिखा है तो 1/3 of the population. तो 150 is correct. No, sir. Sir, 300 pupils. You have to write only 1/3 of the population. That's all. ठीक है? अगर ऑप्शन दिया जा रहा है और उसमें 450, 200, 300 और 150 दिया है, then you will click on 150. Okay? Otherwise, you will click on 1/3 of the population. How many SCs are there? 1/3 of the population. Okay for everyone? समझ में आया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ठीक है? मोस्ट ऑफ द हाउसेस में क्या है? इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। आप जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ट्यूबवेल भी यहाँ पे है। जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन अच्छा है तो ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल जानते हो ना आप सभी? Yes, sir. जो कि इरिगेशन में यूज होते हैं। ठीक है? Yes, sir. अगर गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे ट्यूबवेल्स होते हैं। अब इसके अलावा और क्या है? 2 प्राइमरी स्कूल्स। यहाँ पे क्या है? 2 प्राइमरी schools and 1 high school. ये भी लिख लीजिएगा, एनपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया भी था। 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कौन रन करता है? रन बाय गवर्नमेंट। So what we found over here? We found that the village Palampur is somehow to an extent is a developed village. Sir, run by के बाद क्या? हाँ, कौन सा? Sir, run by के बाद. Government. ठीक है, तो somehow we will found that this village Palampur is a developed one. We cannot find this kind of village. We will not find this type of village in any part of the country. ठीक है, ideally we will not find. ठीक है, exceptions are there, but we will not be able to find this kind of village generally. So this is about the village Palampur. ठीक है, ये village Palampur के बारे में है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ डेवलप्ड रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ है, ऑल इन ऑल अ डेवलप्ड विलेज। समझ में आया? Yes, sir. Only one student responded. Yes. What about the Yes, rest? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, please can you repeat? What I have to repeat? बताइए। सर अभी आपने से थोड़ी देर पहले क्या बोला? मैंने कहा कि it is a well developed means in village Palampur you will find that it is a well developed. There is a well developed systems of roads. Take a look. Write it down, everyone. System of road, irrigation, transportation, electricity, school, health center, है ना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, हेल्थ, स्कूल,
a developed village. Okay, shall I rub this now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, अब यहाँ पे next आते हैं factors. What did you say after irrigation? मैंने रोड, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्थ सेंटर यही बताया। सर ये सब लिखवाए भी। हाँ, ये सब तो लिखवाया है। ओके, अब सर, आते लिख ही हैं रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं, देखो यही मेन हमें पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का क्या एम होता है? व्हाट इज प्रोडक्शन? व्हाट प्रोडक्शन डू? इसका एम क्या Sir, to है? product. टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। तो इट नीड्स फैक्टर्स, फोर फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, व्हाट आर दोज फैक्टर्स? पहला, लैंड। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लैंड, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सर कैपिटल। हाँ बता रहा हूँ, एक एक करके बताऊंगा, लिख लो पहले। ठीक है, लैंड, फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम इट natural resources like forest, minerals are also required, etc. Water are also required. फिर लैंड के बाद नेक्स्ट है आपका लैंड लेबर। लेबर में भी देखिए टू काइंड ऑफ लेबर, एक होगा स्किल्ड, एक होगा अनस्किल्ड। जानते हैं आप स्किल्ड और अनस्किल्ड? Yes, sir. हाँ, यस सर। अनस्किल्ड क्या करेंगे? मैनुअल वर्क करेंगे, क्योंकि दे आर सर, जो अनस्किल्ड। उनको बोला जाएगा वो वही करेंगे। हाँ, मैनुअल वर्क करेंगे। स्किल्ड क्या करते हैं? ये हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होंगे एंड विल एग्जीक्यूट नेसेसरी टास्क। Will execute and produce the ideas. ये स्किल्ड का काम होगा। लैंड हो गया, लेबर हो गया। नाउ द थर्ड वन इज कैपिटल। व्हिच काइंड ऑफ कैपिटल? फिजिकल कैपिटल। कैपिटल भी कह सकते हो, बट हियर यू विल फाइंड दैट दे हैव रिटन फिजिकल कैपिटल, सो यू विल राइट फिजिकल कैपिटल। तो इसमें आएगा पहला, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसमें भी सब पार्ट है। ए, फिक्स्ड कैपिटल। पहला है इसका फिक्स्ड कैपिटल। कहते हैं working capital. ठीक है, इसमें क्या आएगा? टूल्स। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, जनरेटर्स, टरबाइन, कंप्यूटर, एक्सेट्रा। ये फिक्स्ड में आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है? वर्किंग कैपिटल। दूसरा क्या है? वर्किंग कैपिटल। Working capital. तो वर्किंग कैपिटल में अगर देखें तो क्या रिक्वायर्ड होता है वर्किंग? Money in hand. हाँ, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। ओके, तो देखो अब यहाँ पे पर्टिकुलरली एक जगह है जहाँ पे लैंड ले लिया गया। ओके, लैंड के बाद अब यहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आ गए। अनस्किल्ड आसपास से ले लिया, स्किल्ड बाहर से बुला लिए, मोरलेस बाहर से आते हैं। ओके, फिर उसके बाद फिजिकल कैपिटल, पैसे की रिक्वायरमेंट हो। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, यू नीड मनी, तो दैट मनी विल हेल्प। और वो मनी को दो तरीके से खर्चा करोगे, एक फिक्स के लिए रखोगे, वर्किंग के लिए रखोगे। फिक्स के लिए जैसे कि आपने सपोज आपने एक शॉप खोली है या फिर इंस्टीट्यूट खोला है कंप्यूटर टीचिंग का, तो आपने कंप्यूटर के सारे क्या कर लिए? मशीन कंप्यूटर सारे खरीद लिए। बाइंग अ कंप्यूटर विल बी अ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आपको बार बार नहीं खरीदना होगा वो, है ना। बिल्डिंग बनाया है आपने, तो वो बिल्डिंग बनाना क्या हुआ? इज अ फिक्स्ड कैपिटल। बार बार बिल्डिंग नहीं बनाना होता है। इफ यू बाय अ जनरेटर देन इट विल बी अ फिक्स्ड कैपिटल। बार बार आपको जनरेटर नहीं लाना होगा। सो
ऐसा ऐसे खर्च जो एक बार करने हो, बार बार ना करने हो, विल कम अंडर फिक्स्ड कैपिटल। ओके, समझ में आई बात? एंड यस सर। वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे आपके रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। ठीक है, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? हमेशा लगते हैं। आपने रॉ मटेरियल मंगाया, कुछ बनाया, बेच दिया, फिर रॉ मटेरियल मंगाया, कुछ बनाया, बेच दिया। तो रॉ मटेरियल बार बार खरीदना पड़ता है। सो बार बार खरीदने के लिए यू नीड अ कैपिटल, दैट विल बी इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल। मनी इन हैंड, इन डे टू डे एक्टिविटी, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डे टू डे एक्टिविटी यू हैव टू पे वेजेस। ठीक है, वेजेस आपको देने होंगे, सैलरी देनी होगी, और जो फिर ट्रांसपोर्टेशन के जो है खर्च होंगे, these are all will be included in working capital. Okay, all these will be included in working capital. So fixed capital and working capital. Now the next one is knowledge and enterprise. बता दें? नो सर। यस सर। सभी को क्लियर है? सर वर्किंग कैपिटल सर समझ नहीं आई। वर्किंग कैपिटल समझ में नहीं आया। वर्किंग कैपिटल बेटा देखो ये होता है कि जैसे किसी ने, आपने कंप्यूटर का मैंने एग्जांपल दिया जैसे शुरू में, तो कंप्यूटर पढ़ाने के लिए सपोज जो इंडिविजुअल जिसने इंस्टीट्यूट खोला है उसने 2 लोगों को हायर कर लिया। तो उन 2 लोगों को जब हायर किया तो उन 2 लोगों को उनको पेमेंट करना होगा, सैलरी देना होगा। ओके, फिर इंस्टीट्यूट में आने के लिए एक उन्होंने सोचो कैब कर दी। तो कैब भेज के बच्चों को जब ले आ रहे हैं तो उस कैब को रन करने के लिए भी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी, जो 1 या 2 या 3 दिन में भरानी पड़ेगी, फुल टैंकी करनी पड़ेगी, डिपेंड्स। ठीक है, तो उसमें पैसे लगेंगे। समझ में आ रही बात? उसमें क्या लगेंगे? पैसे लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का हर महीने क्या आएगा? बिल आएगा, तो उसमें पैसे लगेंगे। वाटर का क्या आएगा? बिल आएगा, उसमें पैसे लगेंगे। सो इसमें बार बार खर्चे होते रहते हैं। सो दिस आर all these kind of expenses will be included in working capital। और जहां पे एक बार बस खर्च हो जाए, दोबारा नहीं खर्च हो, ठीक है, मोर और लेस, तो वो फिक्स्ड कैपिटल में आ जाता है। समझ में आया? यस सर। और किसी का कोई डाउट? किसी बच्चे का सर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल अभी तो इसके बाद आएगा ना, 4th में। चल आएगा दिस नाउ। यस सर। यस सर। यस सर। अब 4th वन आते हैं, जैसा किसी ने पूछा, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। नॉलेज एंड एंटरप्राइज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यही है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। ये GE है, ठीक है। नॉलेज एंड एंटरप्राइज लिख लो इसमें, एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। ओके, तो आप देखो नॉलेज एंड एंटरप्राइज। इफ यू हैव नॉलेज, ठीक है, इफ यू हैव नॉलेज देन ओनली यू विल बी एबल टू सेट अप एंटरप्राइज। ओके, अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, उनका देखो तो वो आप जो है खुद से यूजफुल है नहीं है। ये नॉलेज और एंटरप्राइज ही ऐसा है जो क्या करता है, उसको यूज में ले आता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो। अपने से वो सब यूज में नहीं होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है नॉलेज एंड एंटरप्राइज। नॉलेज एंड एंटरप्राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, समझ में आया? यस सर। यस सर। So these are the factors of production, 4 factors of production, very important for your examination। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लिख पाया है शॉर्ट में, आप थोड़ा सा ब्रीफ में लिखेंगे, ठीक है, and you will send it out notes on my mail ID। और आई थिंक 1-2 बच्चों ने भेजा भी है। किसने भेजा है? कृष वर्मा ने भेजा है आई थिंक, और किसी बच्चे ने भेजा है? सर अभी भेजना है? नहीं, अभी नहीं भेजना है। पिछला कोई काम भेजा है किसी ने? लेट मी चेक फॉर अ व्हाइल। सर मेरे पे ईमेल आईडी तो है लेकिन सर भेजना नहीं आता है। ओके, स्ट्रेंज।
टेस्ट में सारा आएगा जो आप पढ़ा रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। क्रिश वर्मा ने भेजा, वेरी गुड क्रिश। एंड हिमानी नहीं है। वेरी गुड क्रिश, ओनली क्रिश हैज डिड दिस। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। इट मीन्स क्रिश इज टेकिंग इट सीरियस। आप लोग भी भेजिए, ठीक है। आप लोग की मेल आईडी मैंने बता दिया है, आप लोग भी भेजिए। Okay, sir. I will send it. Now, next one is farming in column। अब फार्मिंग कैसे होती है सर पालक? एक डाउट था हाँ बोलिए। सर, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, राइट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो सर हम फैक्टर्स लैंड ऑफ लेबर तो सर लिख देंगे। यस प्रोडक्शन सर, पूछा जाएगा। फैक्टर्स। तो सर हम लैंड लेबर लिख देंगे सर। अगर हम उसके बाद सिर्फ सर कैपिटल लिखते नॉलेज एंड हैं तो सर इंटरप्राइज फिर से पढ़ाना। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल सर दोनों आ जाएंगे सर कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। किसने कहा आपसे फिजिकल कैपिटल में फिजिकल सर कैपिटल और कैपिटल तो सर दोनों ही है ना। कैपिटल तो अब तीसरा भी तो कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल यस सर, है ना। यस सर, अब समझ गई। सर नॉलेज एंड इंटरप्राइज पढ़ा। नॉलेज एंड एंटरप्राइज कहाँ डाउट है आपको बताइए, मैं बताता हूँ। सर ये लेबर एंड कैपिटल लिखा है सर, ये सर। ठीक है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज जो मैंने आपको बताया, नॉलेज एंड एंटरप्राइज जब आप पढ़ते लिखते हैं तो आप डेवलप करते हैं नॉलेज, आप सेटअप करते हैं एंटरप्राइज। तो वो एंटरप्राइज ही तो इम्पोर्टेंट है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिससे कि होता है लैंड लेबर कैपिटल। अगर देखा जाए तो अपने से उनका कोई यूज नहीं है जब तक कोई एक इंडिविजुअल नॉलेजेबल इंडिविजुअल जो है उसका यूज ना करे, है ना। जब उसका यूज करते हैं तब प्रोडक्शन होता है, तब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, तब मार्केट में वो सेल आउट होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्राइज जो है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड है बहुत सारा, लेबर है बहुत सारा, कैपिटल भी मान लो है, बट इंडिविजुअल ही नहीं है जो इनिशिएटिव ले और इसको जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज करे। तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? किसी यूज में नहीं है, यूजलेस है। That's why knowledge and enterprise is very important, and this knowledge and enterprise we will study in second chapter, people as resource। इसी को human capital भी। Okay? आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब आते हैं फार्मिंग इन कॉलम। तो फार्मिंग क्या है? मेन एक्टिविटी है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पे क्या है? फार्मिंग, बता दिया है। अब ओवरऑल देखा जाए तो 75% जो यहाँ पे लोग हैं, कितने परसेंट? 75% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इट। ठीक है, समझ में आई बात? या तो वो फार्मर्स होंगे, या तो वो फार्मर्स होंगे या फार्म लेबरर्स होंगे, या तो वो फार्मर्स होंगे या फिर फार्म लेबरर्स होंगे जो कि इस पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं जब 75% पीपल डिपेंडेंट हैं तो व्हाट अबाउट यील्ड समझते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पैदावार। तो अब देखें ओवरऑल प्रोडक्शन अगर आप देखो तो लैंड इज फिक्स्ड। सपोज दिस इज ओनली द पीस ऑफ लैंड इज देयर, तो ये लैंड है। अब पॉपुलेशन अगर ग्रो करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो क्या ये लैंड विल बी एबल टू मेक दोस पीपल, or you can say will that land will be able to increase its yield? No, this land will not be able to increase its yield। ठीक है, अगर HYB यूज करके आपने कर भी लिया है तो उससे yield नहीं बढ़ाया जा सकता है, लैंड क्योंकि फिक्स्ड है। अब लैंड फिक्स्ड है तो चलो HYB वाला पोर्शन अभी हम लोग रिमूव करते हैं, लैंड इज फिक्स्ड का ही समझते हैं। जब लैंड इज फिक्स्ड मैंने कह दिया, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अब हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं, ये क्वेश्चन मार्क उठता है। क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, हम लैंड पे लैंड जोड़ तो नहीं सकते कहीं से लाके, इंक्रीज कर दिया और फिर यहाँ पे भी प्रोडक्शन कर दिया। लैंड तो है सिर्फ इतना ही, और इतने ही क्या करना है? हमें प्रोडक्शन करना है।
So what are the ways through which we can increase production inland? ठीक है, cultivation inland. तो अब उसको करने के लिए देखिए there are different methods which have been used. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ये बताओ स्टैंडर्ड यूनिट क्या है ऑफ मेजरिंग लैंड? व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड? सर मीटर पर स्क्वायर। Sir, hectare. वेरी गुड, समवन हैज सेड हेक्टेयर. किसने कहा हेक्टेयर? Sir, me. क्या नाम है? मी, आपने जो नाम Sir, बताया. Jyotishna. वेरी गुड ज्योतिषना. हेक्टेयर, इट्स हेक्टेयर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड. ठीक है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू कितना होगा? कितना होगा 1 हेक्टेयर? लेंथ इनटू ब्रेथ कितना होगा? 10,000 मीटर. जानते हो ना ये कैसे निकालते हैं एरिया? Yes, sir. Yes, sir. So 1 hectare equals to 10,000 meter square. Okay, everyone. Is it clear to each and every one Yes, of you? sir. Only 2 students are saying yes. What about the rest? यस सर। Yes, sir. Okay, good. 4. बाकी बच्चे बाकी बच्चों बताओ, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा आप लोग. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अब आता है हमारे से जो पूछा जा सकता है, हाउ टू ग्रो. ये सब लिख रहे होंगे आई थिंक आप सभी लोग. सर आपकी ईमेल पे सर क्वेश्चन आंसर भी भेजने। हाँ, नोट्स यही बना के भेजने हैं. Yes, sir, लिख रहे हैं. हाउ टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. एक ही लैंड है, लैंड स्पेस हमने पढ़ लिया है. अब इसमें से ज्यादा कैसे उगाएं, अब ये एक चैलेंजिंग टास्क है विच वी हैव टू डू हियर. ठीक है, अब देखा जाए, पालनपुर मैंने आपको बता दिया वेस्टर्न यूपी को रिजेंबल कर रहा है. रेनी सीजन में अगर पालनपुर में देखें, ये आपके एग्जाम में एलपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है. तो रेनी सीजन में हम यहाँ पे क्या उगाते हैं? व्हाट वी ग्रो ओवर हियर इन रेनी सीजन? खारिफ क्रॉप लाइक ज्वार एंड बाजरा. ज्वार एंड बाजरा ये उगाते हैं. फिर कल्टीवेशन होती है किसकी? ऑफ पोटैटो. कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो होती है बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. पोटैटो भी उगा लेते हैं. फिर उसके बाद ये सब पॉइंट देखो, मैं ब्रेक करके लिखा रहा हूँ. यही सारे पॉइंट्स एनटीएससी में पूछे जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं. ऐसे लिखे, ऐसे आप अगर लिख के रखोगे अपने नोटबुक में तो फटाफट आपको कंटेंट क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, जो सेपरेट करके लिखा जा रहा है. सर कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो के बाद क्या है? बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. विंटर सीजन में देखें, विंटर सीजन हम क्या ग्रो करते हैं? राबी को. पर्टिकुलरली कौन सा? व्हीट. ठीक है, खारिफ क्रॉप यहाँ पे लिख सकते हैं, रबी क्रॉप. पर्टिकुलरली कौन सा? व्हीट. और जो व्हीट का सरप्लस है, जो सरप्लस क्या होता है? जो मोर देन रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, अगर हम कुछ उगाते हैं और वो हमसे और जो है वो हमारे नीड से ज्यादा हो जाता है, तो जितना नीड से ज्यादा है वो क्या है? सरप्लस है. सपोज हमने 10 क्विंटल गेहूं उगाया, हमें रिक्वायरमेंट है 2 की, तो जो 8 क्विंटल बचा वही क्या है? सरप्लस है. तो उसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं. तो यहाँ पे सरप्लस कहाँ बेचा जाता है? रायगंज. रायगंज क्या है? Sir, big city. बिग विलेज. Sir, big Big village. village. ठीक है, सरप्लस रायगंज. और शुगर केन भी उगाया जाता है, बंसी नहीं है.
वंस इन ईयर में क्या उगाया जाता है? सुगर। जैगरी भी बनती है, जो कि हम कहाँ ले जाते हैं? शाहपुर। शाहपुर क्या है? Nearest town. स्मॉल टाउन, नियरेस्ट स्मॉल टाउन। ओके ओके, अब नेक्स्ट, इज दिस ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक मिनट हाँ बोलो। डन सर। ओके, तो हम देखते हैं कि हमें जो है कल्टीवेशन जो करना है वो कैसे बढ़ाना है, ये हमें पढ़ना है। तो पहले पर्शियन बीज का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन की जाती है। उसके बाद हुआ क्या कि अब अगर इंडिया में देखो कि ओवरऑल सिनेरियो, तो लगभग 40% स्टिल फार्मर्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन इज अ वेरी बिग इशू इन फ्रंट ऑफ फार्मर्स, दैट हाउ टू इरिगेट देयर लैंड। अब इरिगेट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड पंपिंग सेट, जिससे ग्राउंड वाटर क्या होता है? डिप्लीट होता है। ग्राउंड वाटर जानते हो आप लोग? आप लोगों ने 8 में साइंस ये Yes, sir. क्रॉप Yes, क्रॉप से रिलेटेड कोई चैप्टर साइंस में पढ़ा है क्या? yes, sir, बहुत सारे। है Yes, ना? sir. Yes, sir. तो ये सब तो रिलेट कर ही लोगे आप लोग, है ना? Yes, sir. तो ये डिप्लीट होता है। चलो सर अब कितने नेक्स्ट, परसेंट डिपेंडेंट है रेन पे इरिगेशन के लिए? 40%। 40%, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। नेक्स्ट, अब हमें लैंड पे फिर भी हमें यील्ड बढ़ानी है, तो हाउ टू इंक्रीज यील्ड? ठीक है, हाउ टू ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, इज द क्वेश्चन ओवर हियर। तो वन मेथड हाउ टू ग्रो, मैंने बताया था जैसे, हाउ टू ग्रो मोर क्रॉप्स। एक मेथड है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग करने से क्या होता है? टू ग्रो, लिख लो, ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द एक ही ईयर में क्या करना? एक से ज्यादा क्रॉप को उगाना इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 क्रॉप्स उगाए जाते हैं यहाँ पालनपुर में। 2 मेन क्रॉप कौन कौन से हैं आपके, याद है आपको? 2 मेन क्रॉप कौन सा है? सर एक तो बाजरा है। रेनी सीजन में याद है आपको? ज्वार एंड बाजरा। ज्वार एंड बाजरा। ओके, चलिए अब इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आता है, हाँ, HYVC। यही आपको पढ़ना है, आपने पढ़ा भी है, पढ़ा है ना सभी ने पहले, सभी बच्चों ने? Yes, sir. चलिए, जब पढ़ा है तो बताइए, हु इज द फादर ऑफ HYVC? नो सर। बताइए, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? एट में भी पढ़ा है, 9th में भी स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर पढ़ा है, बताइए। चलिए, HYV सीड्स, ठीक है, एक नए तरह का सीड्स है जो कि 1960s में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आई विल टेल यू द नेम सून। यहाँ पे इस उसको करने से पहले यहाँ पे एक टर्म है यील्डिंग। यील्ड मतलब क्या होता है ये लिख लो, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज यील्ड। देन लिखोगे मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड।
given piece of land during a single season. Okay. अब आते हैं इस ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ये इंडिया में मिड 1960s में आया था, ठीक है। 1965 के अप्रॉक्स लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ शुरू हो गया था उसी समय से, ठीक है। बट आपके बुक में लिखा है मिड 1960s, so you will write mid 1960s, ओके, मिड 1960s। फिर उसके बाद यहीं पे HYP का कंसेप्ट है। अब इसमें फादर की मैंने बात की, फादर इज MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन is the father of green revolution in India. MS Swaminathan is the father of green revolution in India. Okay? Yes, sir. और वर्ल्ड में बताओ, अगर वर्ल्ड में, ये तो इंडिया में थे, वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बॉरलॉग। कौन है? नॉर्मन बॉरलॉग। नॉर्मन बॉरलॉग। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1970 में। यही सब NTSC और JSTSC में पूछा जाता है। क्लियर है? Yes, sir. Shall I wrap this? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे एक कंटेंट जो हमें पढ़ना है वो ये कि डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल सीड्स में और फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज या फिर कह लो मॉडर्न सीड। आप में से कोई बता सकता है डिफरेंस किसमें? डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सीड्स एंड मॉडर्न सीड्स? यस सर। सर HYV सीड से सर हम एक ही प्लांट में सर बहुत सारे वो कर सकते हैं सर, ग्रेन उगा सकते हैं। और So traditional seeds are normal seeds which can be ruined by the insects. चलिए, जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो कैसे आप लिखोगे पहले देख लो। ट्रेडिशनल सीड्स पहला, पहला हाई। हमेशा जब भी पूछा जाए डिफरेंस ऐसे ही लिखना है आपको, टेबल फॉर्म पढ़ा है ना, Yes, sir. ऐसे ही लिखा जाता है डिफरेंस। लेस Yes इरिगेशन, sir. need plenty of water, cow dung and other natural manure, manure as fertilizer। यहाँ पे केमिकल, Traditional seeds take less water and modern seeds take more water. plenty of water लिख दिया, पेस्टिसाइड, और इस तरीके से आप लिखते हैं। तो जो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, ये मॉडर्न सीड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, देखो मेरा पेस यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो भी मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, क्योंकि आपने ये पहले से पढ़ रखा है।
अब ये बताओ, किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने जल्दी में पढ़ा रहा हूँ? कोई बच्चा ऐसा फील करता है क्या? नो सर। एक बच्चा नहीं कर रहा, बाकी बताओ। No, sir. No, sir. No, sir. आराम से ही चल रहा है ना? इतना ठीक है पेस? यस सर। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। सर सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया सर, दोनों का, दोनों में सर लेस इरिगेशन लगती है सर, किसमें कम लगती है दोनों में से? लेस इरिगेशन मीन्स लेस वाटर। सर तो दोनों में से किसमें कम लगती है? हाँ, अब क्या पूछ रहे थे आप? सर दोनों में से किसमें कम लगती है दोनों के कंपैरिजन में? सेकंड में मैंने क्या लिखा है? सेकंड में ट्रेडिशनल सीड में मैंने क्या लिखा है? बताएंगे, रीड करिए। लेस वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन। और सेकंड में मॉडल में क्या लिखा है? नीड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सर वैसे तो मॉडर्न सीड से कंफर्म करता था। हाँ, तो वैसे तो क्या कौन सा होगा आपका मॉडल? यस। अब सर यूजिंग एचआईवी सीड। हाँ, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड अगर आप सर देखें, डू मल्टी। क्या बताओ? सर डू मल्टी क्रॉपिंग। डू मल्टी क्रॉपिंग मतलब what do you want to say? You are giving out some points. जमीन मतलब जैसे ये सर जैसे विंटर सीजन में वीट उगा लें और समर सीजन में कुछ और हाँ, ऐसे। मल्टीपल क्रॉपिंग। Modern seeds are more beneficial. Okay, it has more benefit, okay, compared to traditional seed when it was required in the period of 1965. Why? Because Yes sir. in that period the population was growing enormously, and there was an urgent need of food security, and India was not able to feed its citizens. Okay, so Yes sir. then this particular concept came into existence. The formula of HYV seeds brought out by MS Swaminathan. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है, कहाँ पे यूज किया? पंजाब, हरियाणा, ठीक है, एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये इन लोगों ने बहुत यूज किया एचवाईवी सीड्स का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, और काफी प्रॉस्पर हुए। ओके, अब जब इन स्टेट्स में देखोगे, इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो जो लैंड है वो भी क्या हो गया? डिग्रेड हो गया। अब वो लैंड कैसे डिग्रेड हुआ? एचवाईवी सीड्स है। Yes, it is true that with the use of HYV seeds, okay, means plenty of yield, or the yield increases enormously. Okay, we were now able to secure our citizens from food scarcity. But there are many loopholes which we again can notice, okay, which has been came from this use of HYVC. So what are the loopholes? What are the drawbacks? What are the demerits? What are the consequences of these HYV seeds? Okay, we will note it down. I think most of you know this. That what are the drawbacks or demerits of HYV seeds? जानते हो ना आप सभी? नहीं मालूम है? केमिकल Yes, फर्टिलाइजर्स होते good. हैं सर, इसलिए सॉइल को डैमेज Yes, पहुंचता है। modern farming methods say you will find that overuse. People have used it enormously. What? Land. Overused land. फिर उसके बाद soil की fertility. Soil की fertility has decreased over a period of time. Okay. फिर उसके बाद
केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पे इस लैंड पे बहुत खेती की गई, ठीक है, क्योंकि HYV सीड्स हैं तो इस पे MSP और FCI का भी आ गया था, तो यील्ड यहाँ पे बढ़ गया। तो लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उगाते थे और बेच देते थे। ओके, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत पैसे कमाए। बट हुआ क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सॉइल की फर्टिलिटी जब डिक्रीज होती है तो अभी चिंता में आते हैं कि भाई हमारा जो यील्ड है अब तो वो इम्पैक्ट होगा। पहले 10 क्विंटल मान लो अगर होता था, ठीक है, तो अब कितना होगा, अब 8 हो रहा है, फिर अगले साल देखा 7 हो रहा है। अब क्या करें, तो उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स और बढ़ा दिए, ठीक है, कि पहले 10 होता था तो 10 ही हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स को क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है, तो फर्दर क्या हो गया, फिर से 10 पे आ गए, ठीक है। वो इससे घटना नहीं चाहते, 10 हो रहा है तो 10 ही होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो इससे हुआ क्या कि यील्ड तो बढ़ा, नो डाउट, ठीक है, जो था वो आ तो गया, बट ये केमिकल फर्टिलाइजर्स बढ़ता चला गया। और ये कहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा पंजाब में ही हुआ है। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, पंजाब। पंजाब में ही हुआ है। तो अब ये आप जानते हो केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर यूज करेंगे तो ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली इट विल डिप्लीट, ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा ही होगा। और ग्राउंड वाटर Yes. अगर डिप्लीट हो रहा है तो मीन्स ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम इंक्रीज होगी। साथ ही साथ जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स, व्हेन यू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो होता यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स तो तुरंत मैन्योर, तुरंत न्यूट्रिशियस जो है कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट को, ठीक है, क्रॉप को। बट वो जो है कि जो साथ ही साथ आपके प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनके केमिकल्स फिल्टर होके नीचे ग्राउंड वाटर तक चले आते हैं। वही ग्राउंड वाटर जो कि गांव में लोग थ्रू हैंड पंप्स निकालते हैं और पीते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। यस सर। हम्म। तो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर से हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, वाटर टेबल डिक्रीज तो वाटर होगा। टेबल बहुत नीचे चली जाएगी। हाँ, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिस्टोर बैक और रीस्टोर, है ना, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. यस सर। Sir, ओके, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो, यू कैन फाइंड दिस इन योर बुक आल्सो। यस केमिकल सर। फर्टिलाइजर, सभी बच्चे बताओ, लिख सकते हो ना कि मैं लिखूं। सर आप भी लिख दो। Sir, Satvish. चलो लिखो, minerals dissolved in water are immediately available from the soil. This is
ओके, केमिकल Yes, sir. फर्टिलाइजर से जो सॉइल पे ह्यूमस होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जिससे कि आप जानते हो ना कि डिफरेंट बैक्टीरिया आर देयर, है ना, जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, करते हैं कुछ ह्यूमस वगैरह, जानते हो ह्यूमस नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है? यस सर। यस सर, साइंस में पढ़ा है। Yes, sir. सर और सर को भी रोल होते फर्टिलिटी हैं बढ़ा। इसके। हाँ, Can you repeat what you और just said? ह्यूमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आफ्टर ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और यूज ऑफ सिंपल से यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इट कैन किल बैक्टीरिया। चलो, अब नेक्स्ट पोर्शन आते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। व्हाट अबाउट द Yes, रेस्ट? sir. Yes, sir. यस ओके, सर। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन में, हाउ इज लैंड distributed between the farmers of farm? ये क्वेश्चन, तो इसमें देखो, नॉट ऑल द पीपल engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. डेटा लिखे ना, 1/3 of the 450 are landless, मेरे पास जमीनें नहीं है। कितने हैं? अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है 1/3 of the 450, तो मतलब कितना, 150, कितना, 150 फैमिली। 150 फैमिलीज। अब यहाँ पे क्लियरली हो गया फैमिली की ही बात हो रही है, वो क्या है, लैंडलेस। इसमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, दलित मतलब? एससी, most of them are Dalits. Who don't have, who have no land. Sir. Yes, So what is the meaning of Dalits? Dalits means SCs are considered as Dalits. Okay, Okay, socially sir. excluded persons who lives on outskirts of villages are called as Dalit. In Varna system of Hindu religion or Sanatan religion, you will find that there are certain people who are excluded from society. Okay, were called as Yes, Dalits. sir. Now, next है 240 फैमिली cultivate small plots of land, less than 250. फिर से बात 60 फैमिली, इसमें बीच बीच में कहानियां भी होंगी, तो ये आप लोगों का काम रहेगा कि आप इन कहानियों को क्या करेंगे, घर पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे कहानी पूछूंगा, एक गोविंद की तो कहानी। चैप्टर 1 की ना? हाँ, ओके इसमें सर। गोविंद की कहानी है, वो पढ़ के आना। 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 250
तो ये 60, 240, 150 से एमपीएससी में पूछे जाते हैं। इसी में बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो सीरियसली लेते ही नहीं है ये क्या करेंगे जान करके कितनी टाइम देंगे। ठीक है, वो लाइटली लेते हैं और एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे क्या लाइटली लेंगे, वो वही पूछते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे फार्मर्स ऐसे भी हैं। ठीक है, ये रब कर दूं मैं? Yes, sir. यस सर। ये फार्मर्स तो ऐसे भी हैं, ये फार्मर्स large farmers have land. ठीक है, over 10 hectares of land. तो ये लैंड के बारे में था, हम लोग ने लैंड के बारे में समझा। तो हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से पहला कंप्लीट किया, लैंड। क्लियर है लैंड सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लैंड के बाद लीवर। ठीक है, कौन सा है आपका पार्ट? लीवर। लेबर में मैंने आपको बताया स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों तरीके से हैं। तो फार्मिंग एक अगर देखी जाए क्या है, हार्ड वर्क। कैसा वर्क है? हार्ड वर्क है। और स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि वो स्मॉल है तो वो क्या करते हैं, कल्टिवेट देयर ओन। अब देखो, फार्मिंग एक हार्ड वर्क एक्टिविटी है, स्मॉल फार्मर्स अपना लैंड खुद से कल्टीवेट कर लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, ये फार्मर ये जो है हायर करते हैं लैंडलेस लेबरर्स को। ठीक है, फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं, उनसे काम कराते हैं। तो लेबर कौन प्रोवाइड करता है? लैंडलेस। ठीक है, और फार्म लेबरर्स जो है क्या करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बदले में क्या होता है, उनको क्या दिया जाता है? ठीक है, या तो फिर ये लैंडलेस हो सकते हैं, या तो फिर स्मॉल प्लॉट जो कल्टीवेट करते हैं फार्मर्स, वो भी हो सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए एज ए लेबरर भी वर्क कर सकते हैं। तो लेबरर्स जो भी काम करते हैं उनका कोई राइट नहीं होता है जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं। सब किसका होता है? जो काम वो कर पा रहा होता है, उसके बदले में उनको हालांकि क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। अब वो पेमेंट मतलब जो वेजेस मिलते हैं कह सकते हो, वो काइंड में, कैश में, ठीक है, मील में, किसी भी तरीके से हो सकता है। वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग 2 वक्त का खाना देते हैं, रहने के लिए देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ लोग सिर्फ पैसे देते हैं। ठीक है, वो वैरी करता है। ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड Yes. फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आप देखोगे तो दाला है, एक फार्म लेबर। ठीक है, जो कि डेली वेज पे काम करते हैं। गवर्नमेंट ने अराउंड 300 रुपीज पर डे का फार्म लेबर का चार्ज रखा है, बट देखा जाता है विलेज पालमपुर में तो वो बहुत ही कम है, लगभग 50-60 कुछ है, अराउंड ऐसे ही कुछ है। तो 300 है, 300 नियरली है, और दे आर गेटिंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। दाला इज गेटिंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Sir, सर क्या क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। means the government had set a minimum wage, ठीक है, for farm laborers, ठीक है, daily wage for farm laborers is nearly 300, but Dala is getting very little amount of money। ठीक है, I think it is 100-150। ठीक है, पुराने बुक में तो 50-60 लिखा है, but in new book you can find 100 or 150, मतलब बहुत less amount of money Dala is getting। So what is the basic reason behind it? Why Dala is receiving such a very small amount of money? Any reason behind it? Can I try? हाँ, you There can. are 2 reasons. First Okay. reason is due to the competition of the laborers, and the second reason is due to the modern farming. The new farming techniques are implied, which leads to less work. Okay, तो yes, less work
Okay, you can say that less work is also one of the cause, but in your book they have mentioned that one of the main reason is competition. Okay, and CRT says that one of the main reason is Yes, sir. competition. So always you will prefer it is due to competition that large number of workers are there to work as a laborer. Okay, so Dala is not getting what he was supposed to get. Though machine answer is also a correct one. Okay, machine due to the existence of machine, due to the Yes. innovation of machines, okay, a large number of unemployment occurred throughout the country, throughout the world, not country. ठीक है तो वो तो बड़े होलिस्टिक वे में हो गया मशीन मॉडर्न मशीन वन ऑफ Sir. द मेन रीजन इज कंपटीशन ओके Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो No, sir. चलो अगर if someone if I ask you to write a short notes on this by your own will you able to write Sir, on which topic? on labor Sir, exercise भी देनी है कुछ नहीं? Can. एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए जैसे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोट टाइप में लिखवाता हूँ ना तो यू कैन टेक योर हेल्प यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम योर बुक ठीक है बुक से हेल्प लीजिए यू विल फाइंड आउट डिफरेंट पॉइंट्स रिटन ओवर देयर एंड यू कैन राइट इट डाउन बाय योर ओन विल यू एबल टू डू Yes, सो sir. Yes, sir. if you will go through my notes you will find that these are somewhere related to the concept or the part of your NCERT ठीक है सेम काइंड ऑफ थिंग दो बस हमने क्या किया सेग्रीगेट कर दिया है दो पॉइंट सर एनसीईआरटी से बनाने नोट्स? आप एनसीईआरटी से देख लो ठीक है यू कैन मेक योर ओन नोट्स आप देखो मेरा जो मैंने लिखवाया है समवेयर यू विल फाइंड दैट इट इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ऐसे ही दिया है ऐसे ही चीजें लिखी हैं आप भी वैसे ही लिखने का प्रयास करिए so in coming days you will be asked to prepare notes by your own okay now you are in class 9 you are mature enough from other students who are studying in 6 7 8 ठीक है तो you can write notes by your own आप खुद से लिख सकते हैं देख के पॉइंट क्या है उसको लिख लो हम ऐसा भी करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ठीक है जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा वी विल स्टार्ट अ न्यू मेथड ऑफ स्टडिंग ठीक है न्यू मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा दैट वी विल यूज बुक आल्सो इन क्लास हम लोग क्लास में बुक भी इस्तेमाल करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दैट बुक ठीक है इन दैट चैप्टर उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा अंडरलाइन कराऊंगा सो यू विल प्रिपेयर नोट्स इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स so Yes, I will sir. explain each and everything I will write the main content on whiteboard but you will be asked to write short notes on that समझ में आ रही है बात सभी को सर टेस्ट में बुक से क्वेश्चन आएंगे सर? क्या कह रहे हो सर टेस्ट में बुक से क्वेश्चन आएंगे केल्विन की? हाँ हाँ बुक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से आएंगे डीपीपी जो आ रहा है उसी से आएगा ओके Okay, sir. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टेक केयर बाय बाय सर Okay, sir. Good night, sir. Night, sir. हाँ। Thank you, sir. हाँ बोलो जो सुना सर बोलो जब सर टेस्ट होगा सर संडे को सर उसमें सर सिलेबस क्या होगा? सिलेबस आपको एकेडमिक डिपार्टमेंट बता देंगे जो आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं बात करते हैं ओके सर इनको And sir, where I can ask the route cancellation. क्या पूछना है आपको Sir, French elevation के doubt कहाँ पूछना है? वो एकेडमिक डिपार्टमेंट से पूछिए if you will ask for extra class I think they can give you the right suggestion over there Okay, sir. सर हाँ बोलो सर जो आपको सर काम भेजना है सर आपकी आईडी पे सर ईमेल आईडी पर सर उसमें सर बुक के क्वेश्चंस भी करने हैं? नहीं आप नोट्स वाला जो पोर्शन है वो लिखिए और लिख के दो ओके सर okay everyone take care bye bye